In last lesson we have studied practice set 1.1 of this chapter, linear equation in two variable. Now today we are going to study practice set 1.2. That means here graphical method is used to show simultaneous equation and its solution. In last practice set we have used method of substitution, elimination to solve that to find out that unique equation. But in this practice set we are going to study how graphically we have to find the unique solution. Now first you can see here in your textbook page number 5, this example is given that a graph of 2x minus y is equal to 4. Now last year in coordinate geometry we have done this. If any of the equation in two variable is given, linear equation in two variable is given, we have seen that the graph obtained or the line obtained is straight line. अगर आपको याद है तो हमने ये जो सॉल्व किए थे ऐसे इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से, सिर्फ सिंगल इक्वेशन हमने लिया था, उसका स्ट्रेट लाइन आता है. अभी मैं यहाँ पे आपको यही दिखाने वाली हूँ. बट फॉर टू शो दैट यू नीड सम पेयर्स or values of x and y, and you will require 4 order pair. That order pair इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ऐसे पेयर्स हैं जिसकी वजह से हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आने वाला है. Now here you can see already in the textbook it is given the values of x and y. x and y की values already textbook में दी हुई है. According to that यहाँ पे आपको values लेनी है. जैसे यहाँ पे x is equal to 0, y is equal to -4. And then x is equal to 2, y is equal to 0, x is equal to 3, y is equal to 2, x is equal to -1 and y is equal to -6. Now you have to plot that values here in this graph. Graph paper पे आपको यहाँ पे plot करना है and then you have to put these values here. जैसे x यहाँ पे 0 लेना है, x यहाँ पे 0, that means here this is x axis अगर आपको याद है, और ये y axis है. x0 and y -4, that means this is -4 and यहाँ पे x axis का 0 है, that means ये पॉइंट यहाँ पे आएगा. and then x is equal to 2, x 2 है and y is equal to 0. 0 मतलब y की यहाँ पे कोई नहीं है, y के लिए 0 लेना है, मतलब सेम लाइन पे यहाँ पे ये ग्राफ आएगा, जैसे कि यहाँ पॉइंट आएगा इस x axis पे. then x is equal to 3 and y is equal to 2, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे x is equal to 2 and x is equal to 3 and y is equal to 2, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा. ओके 3 and 2 and after that x is equal to -1 and x is equal to -6, तो यहाँ पे ये y is equal to -6, x -1 है और y -6 है, दैट मीन्स यही का यहाँ पे वो पॉइंट है. अगर आप देख सकते हो, अगर हम स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो ये पॉइंट है. नाउ हियर वी हैव गॉट दिस 4 पॉइंट्स. नाउ यू कैन जॉइन दिस 4 पॉइंट्स. जब आप ये 4 पॉइंट जॉइन करोगे, स्केल से आपको जॉइन करना है, देन यू विल फाइंड दैट दिस graph is actually a straight line. That means whenever two linear equation in two variables are given, always the graph is of straight line if the 4 values are given. Okay, as we have seen single linear equation in two variables. Now here you can see another graphical method study करने के लिए हमें 2 simultaneous equation की जरूरत है. तो यहाँ पे ऑलरेडी एक टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पे एक एग्जाम्पल दिया है, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ x plus y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 2 and observe them. अब यहाँ पे हमें 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए हैं, लिनियर इक्वेशंस, और उसके
ध्यान में रखो आप, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, मतलब ये y है और ये x की वैल्यूज कितनी दी है 4, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, तो x यहाँ पे 1 है और y यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ऐसे आपको जाना है। अभी यहाँ पे डॉटेड लाइन मत बनाइए क्योंकि उससे सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये तीसरा है। देन फोर्थ वन है जिसमें x की वैल्यू दी है 6 एंड y की -2, x की वैल्यू यहाँ पे -6 है एंड y की यहाँ पे देखो आप -2 है, तो हम इसकी स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाएंगे और यहाँ पे 6 के नीचे this one is your fourth point. Now we have got this fourth point. Now we are going to join these points. अब हम इन points को join करने वाले हैं, स्केल से join करना है आपको। This is a straight line. You can see that this is straight line. अब ये कौन सी इक्वेशन का है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन ये है। अब नेक्स्ट यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की वैल्यूज हम लिखने वाले हैं, जहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है x की 0 यहाँ पे एंड y की -2, मतलब ये आएगा पॉइंट यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस पे ही आएगा वो, तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। 3 एंड 4 यहाँ पे मीट कैसे होते हैं ये देखना है हमें। थोड़ा इसके लिए ऐसा डॉट लाइन बनाओ क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे है। ओके, दिस वन एग्जैक्टली इज योर 3 एंड 4। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -4। ये x है -1 एंड ये y है -4, यहाँ पे आएगा स्ट्रेट लाइन में। नाउ वी हैव गॉट दिस 4 पॉइंट। अगेन आपको ये 4 पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करना है स्केल से। स्ट्रेट लाइन हमें मिली है। दूसरा ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिला है ये इस इक्वेशन का, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गया। अब यहाँ पे ये है कि हियर दिस पॉइंट इज एक्चुअली इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या है इसकी वैल्यूज, यहाँ पे हम देखते हैं ये समवेयर अराउंड 2 है x एक्सिस पे और यहाँ पे हम देखते हैं ये y एक्सिस पे भी 2 पे ही है, दैट मीन्स 2 एंड 2, ये हमें इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अब हमें इसे वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन आया है ग्राफिकल मेथड से, बट वी हैव टू वेरीफाई दिस। अब इसे वेरीफाई करने के लिए हम इन दोनों के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे और उससे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर दिस वैल्यू इज करेक्ट और नॉट। इस यहाँ तक मैं थोड़ा सा रब करती हूँ। we'll write x plus y is equal to 4, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 1 एंड 2x minus y is equal to 2, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इसे ऑब्जर्व करो कि y के लिए कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, सिमिलर है एंड दे आर हैविंग सेम पेयर है और अपोजिट साइन है, इसका मतलब हम यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिख के रखते हैं। हम एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन में साइंस कोई भी चेंज नहीं होने वाले हैं। ये 2 है और ये 1 है, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, ये y कैंसिल हो गया, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3, x इज इक्वल टू 3 1 3, 3 2 6, x2 आ गया है। नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू
प्लेस में आपको 2 लिखना है, y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 2 एडिशन है, दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस होगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू 2. नाउ हियर वी हैव गॉट द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, दैट इज xy इज इक्वल टू 2 and 2. दोनों ट्रू आ गए जो हमारा ग्राफिकल मेथड से भी पहले आया हुआ था. दैट मीन्स दिस इज वेरीफाइड. तो यहाँ पे ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये सभी हम यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं. दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, इफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर गिवन, वी कैन फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड इन दिस वे. Okay, take screenshot of this or otherwise you will get it in the textbook. So graphical method we have seen example given in the textbook. Now next activity 1 is given on page number 8. That activity is written here. Solve the following simultaneous equation by graphical method. X minus y is equal to 1 and 5x minus 3y is equal to 1. These two equations are given. अब यहाँ पे इक्वेशंस के यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिए, एक एक वैल्यू दिए. यहाँ पे देख सकते हो x की दी है, यहाँ पे y दिया है, x दिया है, y दिया है, लाइक दिस हर जगह पे. तो दूसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. बट बिफोर दैट जस्ट राइट, जस्ट लिसन कि यहाँ पे क्या दिया है. प्लॉट द अबव ऑर्डर पेयर ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन. ये दोनों ऑर्डर पेयर जो भी हमें मिलेंगे, ऑर्डर पेयर हम बोलते हैं जिसे, वो एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में आपको दिखानी है. ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों भी इक्वेशन का. नोट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स. दोनों ग्राफ जो हमें मिलेंगे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें देखना है, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन. दैट मीन्स राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. और ऐसे करके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बाकी के वैल्यूज फाइंड आउट करने होंगे. जैसे पिछले सम में हमने देखा था कि ऑलरेडी वैल्यूज दिए हुए थे, यहाँ पे एक एक वैल्यू दी है. कैसे करेंगे हम ये, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करके करेंगे. जैसे यहाँ पे x 0 दिया है और y दिया है, y निकालना है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये पहली वैल्यू हमारी. तो इसमें ये x 0 पुट करते हैं यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1. तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y माइनस 1 होगा. यहाँ पे हम y इज इक्वल टू माइनस 1 लिख देते हैं और ब्रैकेट में 0 एंड माइनस 1. देन दूसरा है, यहाँ पे हमें x नहीं पता है, y की वैल्यू 0 दी है. अगेन विल राइट हियर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. x माइनस वाई की वैल्यू लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू 1. यहाँ पे x हमें 1 मिला है. तो यहाँ जब x 1 है तो y यहाँ पे 0 है. तीसरा वैल्यू हमें लिखना है. यहाँ पे तीसरे वैल्यू में हम देख सकते हैं कि इक्वेशन लिखेंगे हम. सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1. देन माइनस वाई, ये 3 दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो ये 1 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस 3 है. तो यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. क्योंकि दोनों साइड पे निगेटिव है तो ये दोनों साइड साइंस निकल जाएंगे और y इज इक्वल टू 2 आएगा. तो जब x इज इक्वल टू 3 है तब y इज इक्वल टू 2 आता है. तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 एंड 2, ये इसके सोल्यूशन है. अब चौथा निकालेंगे हम पेयर. इसके लिए हमें y की वैल्यू माइनस 3 दी है, तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिखेंगे. x माइनस इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखना है माइनस 3, क्योंकि ये माइनस है और ये इसका माइनस है, इज इक्वल टू 1. माइनस माइनस यहाँ पे होगा प्लस, x प्लस 3 इज इक्वल टू 1. अब ये 3 दूसरी साइड जाएगा तो ये होगा माइनस 1 माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 2. सो व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 3, x यहाँ पे हमें मिला है माइनस 2. तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहले x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे. इन दिस वे फॉर इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वी हैव गॉट दिस 4 ऑर्डर पेयर. ये हमें इस एक्टिविटी के ऑर्डर पेयर मिल गए हैं. अब दूसरे साइड में अब इस इक्वेशन में यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करनी है, जैसे यहाँ पे की थी. यहाँ पे हम लिखेंगे इस इक्वेशन को 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. यहाँ पे x की वैल्यू 2 दी है, y की हमें निकालनी है. तो यहाँ पे 5 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1. 5 टू ज़ा 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 1. ये 10 दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस होगा. माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 10.
-3y इज इक्वल टू -9। दोनों साइड से, या अदरवाइज इस -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। -9 डिवाइडेड बाय -3, ये दोनों माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएंगे डिवीजन में, एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे +3 ये आंसर आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जब x 2 है तो y कितना आएगा, 3 आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर 2 एंड 3 ऐसे वैल्यूज हम लिखेंगे। अब दूसरा इक्वेशन हमें करना है जिसमें हम लिखेंगे 5x - 3y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन लिखना है जहाँ पे y की वैल्यू 8 दी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x एज इट इज -3 इंटू y की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 1। 5x माइनस 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 1। अब ये -24 है, दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 1 + 24, 5x इज इक्वल टू 25। x यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाएगा डिवाइड होगा, 25 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 5 5 = 25। यहाँ पे आ गया है x 5, तो जब y 8 है तो x कितना है, 5 है। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5 एंड 8। तीसरा वैल्यू हमें निकालना है यहाँ पे, y जहाँ पे -2 दिया है। सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं 5x - 3y इज इक्वल टू 1। y यहाँ पे -2 दिया है, 5x - 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू 1। 5x, अब 3 2 ज़ा 6 है, निगेटिव निगेटिव विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये इज इक्वल टू 1। अब ये 6 पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। 1 - 6, 5x इज इक्वल टू -5, 1 में से 6 गए, एंड x इज इक्वल टू -5 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 आया है जब y इज इक्वल टू -2 होता है। तो ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे -1 - 2 ये लिखेंगे। अब हमारा चौथा बचा है वैल्यू जिसमें x की वैल्यू -4 दी है। हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे 5x - 3y इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू -4 पुट करते हैं यहाँ पे, -3y इज इक्वल टू 1। 5 4 ज़ा 20, और ये माइनस साइन आएगा क्योंकि एक माइनस है यहाँ पे, -3y इज इक्वल टू 1। अब ये -20 दूसरे साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसे 3y को ऐसे ही रखेंगे, -3y इज इक्वल टू 1 + 20, -3y इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे ये -3 दूसरी साइड जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये ध्यान में रखो, तो यहाँ पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा और ये माइनस साइन के साथ जाएगा यहाँ पे, 21 अपॉन 3, 3 7 ज़ा 21, -7 यहाँ पे y आएगा। तो 4 जब -4 अगर x की वैल्यू है तो y की वैल्यू यहाँ पे -7 आएगी। Okay students, now we have got all these 4 order pair of this equation and also of this equation. Now this is your homework that you have to draw graph of this equation. अब आपको दोनों भी वैल्यूज मिल गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये दोनों ग्राफ आपको निकालने हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट यूनिक इक्वेशन। आपको उसका यूनिक इक्वेशन निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, और उसके बाद चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ओके, नाउ दिस इज एक्टिविटी 1। नाउ if you observe practice set 1.2, question number 1 is given, complete the following table to draw graph of the equation. इक्वेशन की ग्राफ बनाने के लिए नीचे दिया गया टेबल आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों टेबल यहाँ पे दिए हुए हैं और ये आपको वैल्यूज यहाँ पे भरनी है दोनों भी इक्वेशन की। ओके, तो दिस क्वेश्चन यू कैन डू इट योरसेल्फ बिकॉज वन ऑफ द वैल्यू इज गिवन। जैसे अभी हमने एक्टिविटी में दिया था, एक वैल्यू दी है और एक नहीं दी है, तो आपको वो निकालनी है और उसके बाद ग्राफ बनाना है। तो ये क्वेश्चन आप घर में कर सकते हो। और सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। यहाँ पे भी आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसमें एक पेयर दिया है इक्वेशन का, जैसे 1 दिया है x + y = 6 एंड x - y = 4। अब ये इक्वेशन दिया है, इसमें वैल्यूज नहीं दिए, ऐसे 6 सम यहाँ पे दिए, 6 सम्स दिए हुए यहाँ पे, लेकिन वैल्यूज दिए नहीं है हमें। अगर हमें वैल्यूज पता नहीं है तो हम ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं, ये आपके दिमाग में आया होगा। बट यू हैव टू जस्ट यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x
x की आप कौन सी भी वैल्यू ले सकते हो और उसके बाद x की वैल्यू डाल के आप y की भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 ली है, जस्ट इमेजिन करो कि x इज इक्वल टू 1 ली है, तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, ये 1 यहाँ पे जाएगा -1, y इज इक्वल टू 5। तो जो अगर x 1 आएगा तो y यहाँ पे कितना आएगा 5, मतलब 1 और 5 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा। अब यहाँ पे मैं सारे वैल्यूज आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये ओरली अगर आप इक्वेशन को देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सबसे इजी इक्वेशन है। यहाँ पे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब 1 प्लस 5 आया। तो ऐसे हमें दो पेयर ढूंढने पड़ेंगे जिनका एडिशन 6 आएगा, और यहाँ पे हमें 2 पेयर ऐसे ढूंढने पड़ेंगे नंबर्स जिसका डिफरेंस 4 आएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2y4 आएगा। ऐसे ही देखो आपको समझ में आएगा। 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 2 और 4 ये भी वैल्यूज हो सकते हैं। उसके बाद और क्या ले सकते हैं हम, 3 लिया सपोज हमने यहाँ पे, तो 3 और 3 प्लस 3 y भी 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 ये वैल्यूज भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हमने 4 लिया, x इज इक्वल टू 4, तो 4 प्लस 2 करना पड़ेगा, मतलब y 2 आएगा, तो यहाँ पे 4 एंड 2 ये वैल्यूज मिल गई। ये आपको समझ के लेना है कि x और y का दोनों का एडिशन 6 आता है, मतलब ऐसे पेयर ढूंढने जिसका, ये देखो 1 5 2 4 3 3 4 2 ये मिल गए। सेम केस हम यहाँ पे भी करेंगे। अब कौन से ऐसे नंबर्स है जिसका डिफरेंस, मतलब जिसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर 4 आता है, तो हमें ऐसे पेयर्स ढूंढने पड़ेंगे। जैसे अगर हम 5 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है, 4 आता है। मतलब अगर हमने x 5 लिया तो y 1 लिया, तो यहाँ पे 5 एंड 1 ये एक पेयर हमें मिल जाएगा। उसके बाद और कौन से पेयर्स हमें मिल जाएंगे आप ढूंढो। जैसे कि 6 लिया, 6 में से कितने जाने के बाद, 2 जाने के बाद हमारा आंसर कितना आता है, 4 आता है डिफरेंस, तो यहाँ पे 6 एंड 2 ये भी पेयर हमें मिल सकता है। अगर हमने यहाँ पे 4 लिया सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे y कितना आएगा, y 0 आएगा, मतलब 4 में से 0 गए 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 एंड 0 ये भी हमें वैल्यूज मिल जाते हैं। उसके बाद कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे थोड़ा 7 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे हमें, तो 4 आएगा, 3 माइनस करने पड़ेंगे, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 7 एंड 3। ऐसे इजीली आप विदाउट कैलकुलेटिंग भी आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो। बट फॉर दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्योंकि ईजी है इसलिए आप ये कर सकते हो। बाकी के सभी इक्वेशंस में आपको x की आपके मन से कौन सी भी वैल्यू लेनी है, 0 ले लो, -1 -2 एनी वैल्यू यू कैन टेक। जब भी आप x की वैल्यूज डिसाइड करोगे उसके बाद y की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। और जैसे ही आपको ये यहाँ पे 4 ऑर्डर पेयर और यहाँ पे 4 ऑर्डर पेयर मिलेंगे, ग्राफ निकालना है आपको ग्राफ पेपर पे, और उस पर ये इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं, और उसके बाद वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, और वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी हुआ था ऐसे, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन से यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करना, ये अभी आपको खुद करना है, और मैं सबके ग्राफ चेक करने वाली हूँ। अभी मैं यहाँ पे ये ग्राफ नहीं बनाऊंगी, अगर आप चाहिए तो ये वैल्यूज ले सकते हो या दूसरे वैल्यूज भी ले सकते हो। ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, आप अपने मन से कौन से भी वैल्यूज ले सकते हो, बट फर्स्ट आपको एक वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया था। डू यू अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस प्रैक्टिस सेट 1.2। अगर आपको कुछ भी डाउट आया तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि डाउट आएगा, आप ये सॉल्व कर सकते हो। सो टुडेज लेक्चर इज फिनिश्ड, थैंक यू।